شروع کریں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اصطلاحات کی طرف آتے ہیں۔ جو حدیث کی اصطلاح ہے، ہم پڑھ رہے تھے جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ چار قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں صحیح لذاتی ہی، جس کے اندر 5 شروط ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر جو ضبط والی شرط ہے یہ تھوڑی ہلکی ہو تو پھر وہ حسن لذاتی ہی بن جاتی ہے محدثین کی زبان میں، اور اگر اس کو گواہیاں مل جائیں تو وہ صحیح لی غیری ہی بن جاتی ہے۔ وہ چوتھی قسم آج ہم نے پڑھنی تھی، حسن لی غیری، یعنی ایک راوی ہے، بیان کرنے والا ہے، وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، یعنی اس کی بات معتبر نہیں مانی اور جانی جاتی معاشرے کے اندر، یا خاص کر محدثین کی نظر میں۔ تب وہ شخص اگر حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی حدیث ضعیف کہلاتی ہے، ناقابل اعتبار کہلاتی ہے، یعنی وہ بات اگر وہ اللہ کے نبی کی بتلائے گا ہمیں تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اب وہ ضعیف راوی کیسا ہو؟ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جھوٹا نہ ہو۔ جو بندہ جھوٹا ہو اس کو بھی محدثین کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یا اگر فاسق ہے، نافرمانیاں کرنے والا ہے، اللہ کی غلط کام کرنے والا ہے، تو اس کو بھی محدثین جو ہیں وہ گناہ گار کہتے ہیں۔ جو گناہ گار ہے، عام گناہ کرنے والا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے، اب یہ دو شخص ایسے ہیں کہ یہ اگر ان کو کوئی گواہی مل جائے، کوئی اور سندیں مل جائیں حدیث کی، تو ان کی بات معتبر نہیں ہوتی۔ باقی ان کے علاوہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، کس وجہ سے کمزور ہے؟ کہ بیان کرنے والے کے حافظے میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہے، یا جو سند آپ کو بتایا تھا کہ سند متصل ہو، شاگرد اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے بیان کرے۔ اب سند کے اندر کہیں پر کوئی انقطاع آ گیا کہ شاگرد اپنے استاد سے نہیں بیان کر رہا بلکہ اوپر کسی بندے کا نام لے رہا ہے جس بندے سے یہ کبھی ملا ہی نہیں، تو اب یہ انقطاع آ گیا، سند کٹ گئی ہے۔ تو اب اس وجہ سے کوئی حدیث ضعیف ہو گئی ہے یا اس طرح کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہے، اب یہاں پر کوئی اور شخص وضاحت کر دے، وہ حدیث بیان کر دے، تو ویسے ہی وہی والی حدیث جو ہے کوئی اور شخص بیان کر دے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ حدیث معتبر ٹھہرے گی، حدیث کا اعتبار بنے گا۔ اسے کہتے ہیں حسن لغیری، یعنی یہ ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، ناقابل اعتبار ہوتی ہے، لیکن گواہیوں کی وجہ سے یہ حدیث معتبر ٹھہرتی، تو اسے کہتے ہیں حسن لغیری ہی، یعنی اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ وہ جو کمزور راوی ہے وہ ایسا ہو کہ کوئی اتنی بڑی خرابی اس کے اندر موجود نہ ہو، جھوٹ والی یا فسق والی۔ تب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ آج جو حدیث ہم نے پڑھنی تھی، وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل، حلال نہیں ہے، لمسلم، کسی مسلمان کے لیے، ان یہجر اخاہ، کہ وہ چھوڑے اپنے بھائی کو۔ ہجر کہتے ہیں چھوڑ دینا، جس طرح ہجرت ہوتا ہے لفظ، اس سے ہے ان یہجر، یہ کہ چھوڑ دے، اخاہ، اپنے بھائی کو، فوقا ثلاث لیال، 3 راتوں سے زیادہ، 3 لیال راتیں، 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ رکھے تو یہ حلال نہیں۔ یل تک یعنی دونوں ملاقات کریں، ملاقات یہ لفظ یہ بھی عربی کا ہے، تو اس سے لکھا ہے یہ کہ دونوں ملاقات کریں، فَيُعْرِضُ هَذَا، یہ منہ پھیر لے اس طرف، وَيُعْرِضُ، اور وہ منہ پھیر لے هَذَا اس طرف، وَخَيْرُهُمَا، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے، الذی، جو یبدأ، آغاز کرے، یبدأ، ابتدا، ابتدا یہ بھی عربی کا لفظ ہے، تو اس سے ہے یبدأ، آغاز کرے، بالسلامی، سلام کرنے میں، جو سلام کرنے میں آغاز کرے۔ متفق علیہ، اس پر اتفاق کیا گیا ہے، یعنی یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم جو بھائیوں کا میل جول ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے،
کہ اگر کسی کی بات ناگوار گزری ہے یا کسی سے زیادتی ہو گئی ہے تو غصہ دل کے اندر رکھنا ہے تو 3 دن تک انسان رکھ سکتا ہے، 3 راتوں تک انسان رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کیونکہ غصہ ایک فطرتی عمل ہے، اور یہ غصہ جو ہے یہ انسان کے لیے کہہ لیں کہ اس کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی غصہ جو ہے اس سے اللہ کے نبی نے منع بھی فرمایا ہے۔ ایک بندہ یا سوال کیا جی اللہ کے نبی مجھے نصیحت کریں کوئی، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ یعنی پیارے پیغمبر کا یہ طریقہ تھا کہ وہ افراد کی عادات کو مد نظر رکھتے، پھر اگر وہ نصیحت طلب کرتے تو ان کی نصیحت اس افراد کی وہ عادات کے مطابق ہوتی۔ وہ بندہ غصیلا تھا تو آپ نے کہا غصہ نہ کیا کر، اس نے بار بار نصیحت طلب کی تو آپ نے بار بار غصے سے ہی منع فرمایا۔ تو یہ غصہ کرنا جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات غصہ آنا بھی چاہیے، کسی وجہ سے اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ یعنی غصہ جو ہے اگر اپنے محل پر ہو تو یہ محمود ہے، قابل تعریف ہے اور مطلوب ہے، لیکن اگر یہ غصہ جو ہے اپنے محل پر نہیں ہے، یعنی بسا اوقات یہ غصے کی وجہ ہوتی نہیں لیکن ہم غصہ کر لیتے ہیں، تو وہ غصہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو لیکن بعض امور ہیں کہ وہ فطرت کا حصہ ہے، وہاں پر غصہ آ ہی جاتا ہے، تو انسان کی طبیعت میں یہ بات شامل ہے۔ تو اب اگر وہاں پر غصہ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں پر آپ غصہ کر سکتے ہیں، مثلا آپ پر زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، تو لیکن آپ اس کو کیا کریں کہ 3 دن تک رکھ سکتے ہیں کہ بالآخر وہ زخم جو ہے مندمل ہو جائیں گے، وہ جو غصے کی وجہ سے، جو ناراضگی کی وجہ سے آپ کے دل پر لگے ہیں، جب وہ مندمل ہو جائیں تو یہ غصہ پھینک دینا چاہیے۔ تو غصے کو طوالت دینا، لمبا کھینچ لے جانا، یہ غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی دینی وجہ سے غصہ کیا جا رہا ہے، کوئی دینی وجہ ہے جس کی وجہ سے غصہ کیا جا رہا ہے، تو یعنی کوئی واقعی میں وجہ ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس کی وجہ سے ناراضگی جو ہے وہ طول کھینچ سکتی ہے۔ اس کی دلیل وہ واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا تھا جی ہر بندہ ہی جنگ پر چلے۔ تو یہ جنگ بڑی ہے اور دشمن جو ہے وہ بھی مضبوط ہے، تو وسائل بھی نہیں ہیں، تو آپ کا حکم تھا سب چلے، لیکن 3 نامور اشخاص مخلص صحابہ جو ہیں وہ آپ سے پیچھے رہ گئے، آپ کے حکم کا پاس نہیں کر سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے ہیں، اور یہ پھر ناراضگی آپ کی 50 دن تک رہی ہے، حتیٰ کہ آپ نے بھی ان سے بولنا بند کر دیا، اور دیگر صحابہ کو بھی آپ نے منع فرما دیا کہ کوئی ان سے نہ بولے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ آپ نے بیویوں کو بھی روک دیا کہ تم نے بس خدمت کرنی ہے، کھانا ان کو دو، لیکن اس کے بعد اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ ان کو یعنی ان کے قریب نہیں جانا، ان سے بات چیت نہیں کرنی۔ تو یہ نہیں، اس حد تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تو یہ بائیکاٹ کرنا جو ہے، یہ اگر کوئی ایسی وجہ ہے کسی نے ایسا جرم کی، جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی خاتون کہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ اسے منع نہیں کرو۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ تو اس منع نہیں کرو جمعہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر خواتین فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 3 نمازیں مسجد میں آپ کے پیچھے جا کر پڑھتی تھیں۔ تو پیارے پیغمبر نے بتا رکھا تھا کہ عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ تو لیکن اگر کوئی کہے جی میں نے مسجد میں پڑھنی ہے تو پھر اسے بھی اجازت ہے، گھر میں پڑھنا بہتر ہے اس کے لیے، پردے کا زیادہ بلکہ پردے کا تو اس حد تک آیا ہے کہ آپ گھر کے صحن سے پڑھنے کی بجائے کمرے میں پڑھ لو، یہ بہتر ہے، اور کمرے کی بجائے پچھلے کمرے میں جا کر پڑھو، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یعنی عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا، صدر کا وہ خصوصاً حکم دیا۔ تو لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر عورت نماز پڑھنے کے لیے چاہے تو منع نہیں کرنا۔ تو حضرت سنائی اپنے بیٹے کو، سالم کو، یا کوئی اور بیٹا تھا، تو وہ کہنے لگے جی ہم تو روکیں گے، ہم تو نہیں جانے دیں گے انہیں۔ تو عبداللہ ان سے ناراض ہو گئے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو جی ہم روکیں گے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں روکو۔
तो मैं तुमसे बात नहीं करूँ, उनका बाइकाट कर दी। काफी देर फिर उनसे बोले नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि, ये बल्कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये यानी इससे मालूम होता है कोई दीनी वजह हो, कोई ऐसी कोई वजह है, तो उस पर बाइकाट किया जा सकता है, वो तादेर भी रह सकता है। लेकिन अगर सिर्फ जाती आपकी जहन को कह लो कि परेशानी हुई है, या दिल पर कोई जद पड़ी है, या आपको कोई हक गस्ब हुआ है, तो ठीक है, वो हक का मुतालबा आप कर सकते हैं, और हक जो है उसकी तलब के लिए आप जद्दोजहद या जुस्तजू भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बाइकाट कर देना, तो ये गलत है। इससे फिर बाइकाट कर देने से ये होता है कि कितने ही हुकूक से इंसान को फिर पास कदमी इख्तियार करना पड़ती है। मसलन सलाम ही है, तो सलाम भी मुसलमान का हक है, तो फिर हम सलाम भी नहीं कहेंगे। तो सलाम भी जब नहीं कहेंगे, तो फिर उसके बाद कोई दावत देता है, वो आपने पढ़ा है कि वो भी हक है मुसलमान का, कि कोई दावत है उसकी दावत कबूल की जाए, तो वो भी हम नहीं करेंगे। तो इस तरह और खैर के कितने काम हैं जिनसे बंदा महरूम हो जाता है। तो बहरहाल, भाई से, बहन से, किसी मुसलमान से कोई ज्यादती होगी है, तो उस ज्यादती के इजाले के लिए ठीक है, तगदो हो जाए। लेकिन नाराजगी जो है वो भी आप करके देख लें, तो वो एक हद तक रखी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और ये जो बाइकाट है, ये भी अगर आप देखें ना, कोई इंसान है और वो देखें कि ये शख्स मेरे बाइकाट करने से सुधर सकता है, तो फिर ठीक है, उसका बाइकाट कर, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का किया। तो वो बताते जी हम पर तो जमीन तंग हो गई, हम तंग आ गए कि ये हमारे साथ बना क्या है। तो लेकिन अगर आप देखते हैं कि किसी का बाइकाट करें, तो उल्टा वो मजीद आपसे दूर हो जाएगा। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको कुरान की, हदीस की समझ दी है और दीन का एक शऊर दिया है, तो आप दूसरों की रहनुमाई करके उसको राह रास्त पर ला सकते हैं। तो अगर आप देखें जी, बाइकाट करने से तो उसकी रहनुमाई खत्म हो जाएगी, तो फिर आप क्या करें, फिर बाइकाट ना करना ये बेहतर है। यानी को दीनी वजह, जिस तरह आपको बताइए पहले कि दीनी वजह से बाइकाट हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें जी, बाइकाट करने से क्या हो रहा है, उल्टा वो मजीद दूर हो रहा है, तो फिर नहीं, फिर बाइकाट खत्म कर दें। फिर उससे ये ताल्लुकात बहाल करें, और उससे ये बातचीत करें। हाँ, अगर सिर्फ जाती वजह है, सिर्फ आपके जाती मफाद को नुकसान पहुंचा है, तो फिर आप 3 दिन से ज्यादा बाइकाट नहीं कर सकते। फिर किसी मुसलमान के लिए हलाल हलाल नहीं है कि वो अपने भाई से नाराज रहे और नाराजगी को लंबा ले चले। इसके बाद हदीस है, वन जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाबिर से रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो पहले अबू अय्यूब की रिवायत थी। तो ये अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जो मेज़बान रसूल थे, जिनके घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर सबसे पहले अपना सामान रखा था, और इनके घर के अंदर रहायश इख्तियार की थी। तो मेज़बान रसूल, और उसके बाद ये जाबिर हैं, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये भी बड़े नामवर और मुखलिस सहाबी थे। तो इनके बाप अब्दुल्ला थे, दोनों बाप और बेटा थे, और इनकी बहनें थी काफ़ी। तो और कोई मर्द इनके घर में नहीं था। तो इन्होंने क्या कि यानी बाप और बेटा दोनों ही ये जिहाद के अंदर शरीक होते रहे, लड़ाइयों में शरीक होते रहे। तो बाप इनका शहीद हो गया, अब जाबर पीछे रह गए। तो बहनों का ख्याल रखने वाले, बहनें जवान थी, यही थे। अब इनकी शादी का मौका आया, तो शादी इन्होंने कर ली किसी बेवा औरत से। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुंवारी से क्यों नहीं की? तो कहने लगा, जी बहनें मेरी जवान थी, तो बहनें थी मेरी, तो मैंने कहा उनका कोई ख्याल रखे। तो कुंवारी से करते तो वो भी उन जैसी होती, तो ख्याल रखना मुमकिन ना होता। तो इस वजह से मैंने शादी की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कारकर्दगी पर खुश हुए। तो ये भी यानी अल्लाह के नबी के बड़े प्यारे थे। फिर अल्लाह के नबी, इनकी खिदमत भी बड़े एक तरीके से की। वो भी हदीस में आता है कि जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो आ रहे थे रास्ते में, तो इसकी ऊँटनी बड़ी मरियल सी थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया, जी ऊँट बेचोगे? तो कहने लगा, जी मरियल सा है, तो आपने क्या करना है? तो अगर आपने लेना है तो ठीक है, बेच देता हूँ मैं। तो पैसे तय हो जीतने का। तो ठीक है जी, तुम मदीना चलो, तो मदीना जाके ऊँटनी मेरे हवाले कर देना और पैसे अपने ले लेना।
वो जब मदीना पहुंचे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं, जी ये अपना ऊँट ले लें और पैसे दे दें। आपने पैसे भी दे दिए और कहा ये ऊँट भी ले जाओ, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। तो ये थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आप नवाजने के बहाने ढूंढते थे अपने मोतक़िदीन, अपने मुरीदीन। तो ऐसे यानी पीर थे, यानी दुनिया बिला वजह अपनी आप पर जान नहीं छिड़कती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ रवैया और बर्ताव ही ऐसा रखा हुआ था कि वो लोग आप पर जान छिड़कते थे। तो बहरहाल पैसे भी दे दिए और ऊँटनी भी इनके हवाले कर दी। तो जाबिर से रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मारूफिन सदक़तुन, हर मारूफ काम, नेकी का काम, सदक़तुन वो सदका है। यानी मारूफ कहते हैं जो जाना पहचाना काम है, जिसको हम पहचानते हैं कि ये अच्छा काम है। तो ये मुराद कोई हर अच्छा काम जो है वो सदका है। तो अब सदका जो है, अखराजुल बुखारी, इसको बुखारी ने निकाला है। अब सदका जो है, ये आम मफ़हूम में तो यही है कि इंसान जो है वो अल्लाह की राह के अंदर पैसा खर्च करे, वो सदका होता है। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे काम को सदका करार दे रहे हैं। तो ये हदीस भी एक आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब सदके का हुक्म दिया, तो सहाबा कहने लगे, जी अगर हमारे पास माल ना हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम मेहनत करो, माल कमाओ, अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाओ और सदका भी करो। ये माल खर्च करना अल्लाह की राह के अंदर, ये बड़ा मतलूब है इस्लाम के अंदर, बड़े फ़वाइद हैं इसके। असल में ये जो माल खर्च करना है ना अल्लाह की राह के अंदर, ये कह लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने गुरबा का, मसाकीन का हक रखा हुआ है। और गुरबा मसाकीन उनके पास इतने वसाइल नहीं होते जिस तरह ये हम हैं। तो अगर किसी भाई का बैंक अकाउंट नहीं है, तो उसको हमने पैसे भेजने हैं, तो हम पूछते हैं जी मोहल्ले में किसी का हो या किसी दोस्त का हो तो उसका अकाउंट हमें दे दो, हम उसके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। वो उसके अकाउंट में आ जाते हैं, फिर वो मिले जिसको हमने भेजने तो उसको मिल जाते हैं। तो ऐसे ही बाज़ लोगों को अल्लाह ने नवाज़ना होता है, तो वो डायरेक्ट चूँकि उनके पास कोई ऐसा वसीला नहीं होता कि अल्लाह उनको ज़्यादा नवाज़ सके, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वो यानी माल, वो दौलत किसी और नेक बंदे के अकाउंट में भेजते हैं, तो उसके ज़रिए फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको पहुँचा देते हैं। यानी कोई बंदा कारोबार कर रहा है, अब कारोबार में ख़ुसूसन अल्लाह का करम हो जाए और अल्लाह जो है गाहक भेज दे अपनी तरफ से उसकी तरफ, तो वो जो इज़ाफ़ी मुनाफ़ा है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस भाई के लिए भेजा है। तो अगर बंदा कहे जी सारा मेरा ही है, तो ये फिर बंदे की गलतफ़हमी है, तो अल्लाह तबारक व तआला भेजना बंद कर देंगे, कारोबार में मंदा पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो बहरहाल ये है कि वो हर वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, अल्लाह फरमाते हैं कि उनके मालों के अंदर मालूम है हक़, सवाली का भी और महरूम का भी। यानी आपके माल के अंदर आपका भी हक है, बीवी बच्चों का भी हक है, सबका हक है और उसके साथ-साथ सवालियों का भी हक है और महरूम का भी हक है। यानी उनकी किस्मत में जो चीज़ होती है, आप उनकी खिदमत में कर रहे हो, तो उनका हिस्सा अल्लाह आपके अकाउंट में भेज देगा, तो आप उन तक पहुँचा दो। तो ये जो हम देते हैं, तो ये अल्लाह ने हमें दिया ही उनके लिए होता है। तो अगर हम रोक लेंगे, तो अल्लाह देना बंद कर देगा। वो सिर्फ़ हमारा ही फिर हमारे पास आएगा, इज़ाफ़ी हमारे पास नहीं आएगा। तो बहरहाल सदका जो है इस्लाम में इंतहाई मतलूब है। अब कोई बंदा, जिस तरह वो बंदे ने कहा अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी नहीं हमारे पास है मौजूद, तो हम क्या करें? तो आपने कहा जी मेहनत करो, मेहनत करके खुद भी कमाओ और फिर अल्लाह की राह में खर्च भी करो। तो वो बंदा पूछने लगा, जी अगर कोई मेहनत भी ना कर सके, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी की मदद कर दो। तो बंदा काम कर रहा है, उसकी मदद कर दो, ये भी सदका है। अब ज़ाहिर बात है किसी की मदद, वो भी एक मज़दूरी है और वो आप मदद करें और मज़दूरी ना लें, किसी का सूट सी दिया किसी खातून ने, या किसी को कह लें कि कुछ मदद दरकार थी, वो मदद उसकी कर दी उस काम के अंदर। तो अब उसकी मसलन किसी के बच्चे को पढ़ा दिया, अब इसकी एक मज़दूरी बनती है, तो अगर वो मज़दूरी नहीं ले रहा, तो गोया ये भी सदका हो गया, किसी की मदद कर दो, ये भी सदका है। तो अच्छा जी अगर मदद भी ना कर सके, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको अच्छी बात कह दो, उसको वैसे ही अ, अच्छी रहनुमाई कर दो, जिस तरह आप ये रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, ये हदीस आप सुने और अहादीस को फिर आगे फैला दें। यानी आप तो आजकल तो बहुत आसान काम है, वायरल कर दें। तो ये वायरल करना आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिल जाएगी। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करते हैं, नज़र अल्लाहु इमरान सामिया मकालती फवआ व फअद्दाहा,
कमा समिया ओ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह उस बंदे को तरो ताजा रखे, हशाश बशाश रखे, खुश बाश रखे, कि जो मेरी बात को सुने, उसको याद करे, फिर जैसे सुना था वैसे ही आगे पहुंचा दे। तो अब वैसे ही आगे पहुंचाना, उस दौर में तो ये था जुबानी सुना जुबानी पहुंचा दिया, लेकिन आज तो काम आसान है, सिर्फ वो बटन दबाना है और हजारों बंदों को पहुंच जानी है बात, वो हदीस रसूल। अब उन हजारों में से कहने कि अगर चंद लोग भी सुन ले तो अल्लाह करे बात बन जाए। तो इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस आगे पहुंचाना, ये जिस तरह आपने फरमाया कि ये भी एक सदका है कि अच्छी बात किसी को बता दी जाए। आप खुद बता दें, अपनी जुबानी बता दें, या कोई बात है उसको आगे वायरल कर दें। तो ये यानी काम मजीद आज के मीडिया ने आसान कर दी है, अगर हम इसका मुस्बत इस्तेमाल करें तो। और कहा जी, अगर ये भी नहीं करता तो फिर कहा ये अगर ये भी वो अच्छी बात भी नहीं बता सकता, तो कहा फिर किसी को तंग ना करे, किसी का नुकसान ना करे, किसी को किसी की बुराई ना करे। यानी आप किसी को बुराई से महफूज कर दो, आपकी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, आपके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ये भी सदका है। हत्ता कि अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस के अंदर, कि अगर एक दोस्त है, उसके डोल के अंदर पानी है, वो अपने दोस्त के डोल में पानी डाल दे, तो ये भी सदका है। यानी ये जो अमूर जो हम ये सुनते हैं, ये देखते हैं कि फलाना जो है वो अखलाक का चैंपियन है। उसने एक दोस्त है, एक आदमी था, वो कहता है मैं किसी दफ्तर में काम के लिए गया, तब वहां पर जो क्लर्क बैठा मेरा काम कर रहा था ना, तो मैंने कहा जी इसने मैंने काम इसको कहा है, इसने कर देना है। तो बात खत्म, मैं अपने घर या अपने घर खुश, लेकिन क्यों ना मैं इसको थोड़ी सी खुशी फराहम कर दूं, मैं खड़ा ही हूँ। तो कहते मैं सोच रहा था मैं इसको कैसे खुश करूं। तो कहते हैं मैंने उससे कहा कि दोस्त तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं। तो कहता है वो देख के वो ये बात सुनकर खुश हो गया। तो यानी उसकी हकीकी तारीफ कर दी। तो ये चीज है कि किसी तरह से किसी को खुशी फराहम कर दी जाए, उसको तकलीफ ना पहुंचाई पहुंचाई जाए। तो इनमें से कोई काम इंसान कर ले तो इंसान गोया सदका ही कर रहा है। यानी आपकी जात जो है वो एक फूल की तरह हो दुनिया के अंदर, एक फूल की तरह है। यानी उससे मिलनी है तो खैर ही मिलनी है, किसी का नुकसान नहीं होना। जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक फूल की तरह हो जाओ, जो मसलने वाले के हाथों को भी खुशबूदार कर देता है। तो अगर हर इंसान फूल बनने की कोशिश करे, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने सारे आइज़ा अकरबा के लिए, यानी ये फूल जो है वो धूप सहता है, गर्द सहता है, गर्द पड़ती है, धूप पड़ती है, लेकिन जवाब के अंदर वो खुशबू और महक की, हाँ, रोड है, यहाँ से गाड़ी गुजरी है और गाड़ी ने कह लें कि पानी खड़ा था, छींटे डाल दिए फूल पर, या गर्द उड़ी वो भी फूल पर पड़ गई, फूल पर जुल्म हो गया, लेकिन फूल ने आगे से गाड़ी वाले को क्या दिया, वो उसका रास्ता महका दिया। तो ये एक फूल जैसी जिंदगी जो है ना, ये आप पढ़ें दीन को, आपका दीन आपको ये सिखाता है कि फूल की तरह जिंदगी बसर करो। हत्ता कि जो अहले कुफर हैं, उनके लिए भी अब फूल की तरह ही हो। ये जो लोग गैर मुस्लिम हैं, अब उनके लिए भी देखें, हमारे सहाबा जो हैं दीन के जो सबसे ज्यादा कारबंद थे, उन्होंने उनके लिए भी फूलों जैसा किरदार ही अदा किया। इसी वजह से जहां वो लोग गए हैं, देखें वो सारे की सारी ममलकतें मुसलमान हो गई। हम्म। अब यहाँ पर यानी अगयार ने हमारे मुल्कों पर आज के दौर में कह लें हमला किया है, लेकिन वो वहां पर अपना असर नहीं डाल सके, अपने अकायद वहां पर नहीं फैला सके, अपने से लोगों को मुतासर नहीं कर सके। लेकिन हमारे असलाफ जिनको कहा जाता है ये बहुत सख्त थे, बड़े ये खूंखार थे, तो लेकिन हम देखते हैं कि ये सिर्फ प्रापेगंडे हैं। वो लोग जहां गए हैं उन्होंने अखलाक की ऐसी किरणें बखेरी हैं कि दुनिया मुसलमान होगी, और जहां जहां वो इस्लाम ने कदम धरे हैं वहां पर इस्लाम फैलता चला गया, सारी दुनिया जो है उनकी मोतकद होगी। तो वजह ये थे कि वो यानी लड़ते भी अगर थे तो जिस तरह कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि तुम लड़ो, किन से लड़ो, जो तुमसे लड़ते हैं, यानी जवाबन लड़ना है। और आपने कहा कि वो जो तुम्हें हर वक्त मारने पर आमादा रहते हैं, फिर उनको जहां पाओ, ये कुरान में जो आता है ना, जहां पाओ कत्ल करो, ये उनको कहा गया है कि जो हर वक्त आपको मारने पर आमादा रहते हैं। जाहिर बात वो आपको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, तो फिर आपने भी थोड़ी कमी थोड़ी करनी है।
تو یہ जवाबन कहा गया। लेकिन ये कि मुसलमानों ने किसी पर जुल्म किया हो या किसी का हक तलफी की हो, तो ऐसी बात नहीं है। जहां भी गए हैं तो ऐसे इंसाफ से हुकूमत की है कि दुनिया उनकी, ये वो दुनिया दंग रह गई है और दुनिया उनके अखलाक से मुतासर हुई है, और नतीजा तन जो है वो उनका दीन उन्होंने इख्तियार नहीं। आज भी देख लें कि इस्लाम मजलूम होने के बावजूद जो है वो अपना असर जो है वो छोड़ रहा है। तो बहरहाल ये एक फूल जैसी जिंदगी वो इंसान बसर करे, ये इस हदीस का मतम नजर है कि हर अच्छा काम वो सदका है, तो हर अच्छा काम एक मुसलमान को करना है। तो जो भी अच्छा काम आप करोगे तो वो गोया आप सदका कर रहे हो। सदका करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से इसका इनाम भी आपको मिल जाएगा। आखिर के अंदर एक और हदीस पढ़ देते हैं। वन अबी ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला, फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। ये अबू ज़र वो हैं जो बहुत ही दरवेश मनश आदमी थे कि ये इनका सहाबा से भी झगड़ा हो गया, जी आप पैसे इकट्ठे करते रहते हो। तो उन्होंने कहा जी जायज़ है, जब ज़कात आपने दे दी है फिर जितना मर्ज़ी आपके पास खजाना भी हो तो वो हलाल है। आपके पास करोड़ों हों, अरबों हों, खरबों रुपए हैं, वो रखना जायज़ है। अगर आपने ज़कात दे दी है और मसाकीन का हक अदा कर दिया, फिर जितना पैसा हो तो कोई कबाहत वाली बात नहीं। लेकिन ये कहते थे कि नहीं, अल्लाह के नबी का तरीका ये था और मेरा भी यही है कि जो ज़रूरत है वो खर्च कर लो, बाकी इज़ाफ़ी माल अल्लाह की राह में खर्च कर दो। तो ठीक है, ये बेहतर तरीका है, अल्लाह के नबी ने यही वतीरा अपनाया था। तो लेकिन माल जमा करने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम नहीं ठहराया। सहाबा ने जमा किया है, बड़े-बड़े मालदार सहाबा थे। तो ये जितना माल होगा एक मुसलमान के पास, उतना ही ज़्यादा वो अल्लाह की राह में खर्च करेगा। जब उतना ही खर्च कर रहा है तो फिर इस जैसा दुनिया में इंसान कोई नहीं हो सकता। दुनिया में ये एक बहुत बड़ी खैर है कि बहुत ज़्यादा माल हो और बहुत ज़्यादा बंदा उसको अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 बंदे काबिल रश्क हैं। एक वो जिसके पास इल्म है और वो फैला रहा है। दूसरा वो जिसके पास माल है और वो खर्च कर रहा है। यानी अंधाधुंध खर्च कर रहा है, ये हदीस में आता है। तो बहरहाल लेकिन अबू ज़र ये दरवेश-मंश आदमी थे, कहते थे मैं ना माल रखूँगा, बस ज़रूरत पूरी की बाकी सारा अल्लाह की राह। तो ये फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ि शैय्या, कि मारूफ में से, अच्छे कामों में से किसी काम को तुमने हकीर नहीं समझना। वलो, और अगरचे, अंतल का ये कि तू मुलाकात करे, अखा का अपने भाई से, बिवजहिन साथ चेहरे के तल्क कुशादा, यानी अपने भाई से मिलते वक्त तुमने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर ली है ना, ये भी एक अच्छा काम है। इसको भी हकीर नहीं जानना। जिस तरह कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना कि उस दिन वो जर्रा बराबर भी खैर होगी तो उसको भी, वमन यामल मिथकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर भी खैर का काम करेगा वो भी उसको वहां पर नजर आएगा कि अल्लाह ने वो भी महफूज कर रखा है, उसकी वो नेकी महफूज की हुई है। वमन यामल मिथकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर भी शर करेगा ना, बुरा काम करेगा, उसको भी देख लेगा। यानी हमारा डाटा बड़ी बारीक बीनी से इकट्ठा हो रहा है। हमारी एक-एक हरकत, हमारा एक-एक बोल, हमारा एक-एक अमल बड़ी बारीक बीनी से इसको इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये अल्लाह फरमाते हैं, ज़र्रा क्या होता है? ये मसलन ये आपके कमरे के अंदर जब धूप की किरण पड़ती है, किसी खिड़की से वो बारीक सी किरण आती है, तो उसके अंदर आप देखते हैं किस तरह वो गुबार सा उड़ता हुआ नज़र आता है। तो वो गुबार के जो ज़र्रे होते हैं, वो ज़र्रा होता है। तो ये ज़र्रा कितना बारीक होता है, इसको अगर आप तोलना चाहें तो ये आपके तोल के अंदर भी ना आए। हाँ? तो इतना यानी ये कह लें कि छोटा होता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये इतना का ज़र्रा भी तुम्हारे आमाल का वो अल्लाह की नज़र से ओझल नहीं है। क़यामत को तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम खुद इसको महसूस कर लोगे। तो लिहाज़ा ये बड़ी, ये कह लें कि हसास हमारी ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला फिर हमारे वो गुनाह माफ़ कर देता है, और जो बंदा किसी की चुगली नहीं करता, किसी के ऐब जो है दुनिया को बयान नहीं करता, अल्लाह इसके ऐबों पर पर्दा दुनिया के अंदर आखिरत के अंदर डाल देगा। इसके सब कुछ अल्लाह छुपा कर चल जा जन्नत के अंदर चला जा। तो लेकिन जो आज लोगों की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं करता, उनकी इज़्ज़तों को उछालता है सरे बाज़ार, तो कल को अल्लाह इसका सारा कच्चा चट्टा खोल कर लोगों के सामने रख। तो लिहाज़ा ज़ुबान ध्यान से इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बहरहाल इस हदीस के अंदर ये है कि कोई भी नेकी है वो ज़र्रा बराबर भी उसको हकीर नहीं समझना। जिस तरह अभी मैंने आपको मिसाल दी कि वो बंदा खड़ा है, उसने बिला वजह अगले को खुश करने के लिए उसके बालों की तारीफ़ कर दी। तो इस तरह हम बहाने-बहाने दूसरों की खुशी ढूँढे।
تو یہ ذرہ ذرہ سی ہماری نیکیاں جو ہیں انشاءاللہ ہم کو رب کے دربار میں سرخرو کر دیں گی، اور ہمارے کہہ لو کہ ہمیں بلند درجے سے نواز دیں گی۔ اور قیامت والے دن جو سب سے بھاری نامہ اعمال کے اندر انسان کا عمل ہوگا، وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھا اخلاق اس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا آپ کے نامہ اعمال کی طرف۔ تو لہٰذا یہ انسان اخلاق کا چیمپئن ہو، اس کی ترغیب اگر آپ کو کہیں سے ملے گی تو یہ اسلام سے ہی ملے گی۔ دنیا کے اندر ہر خیر کا جو کلمہ یا بات ہے، اس کی اصل اگر آپ کو ملے گی تو وہ اسلام کے اندر ہی ملے گی۔ اسلام مذہب ہی یہ سلم سے نکلا ہے، سلامتی سے نکلا ہے۔ تو لہٰذا جو مسلمان ہو، اس کے ہاتھ، زبان، اس کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، اسلام کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان ایک پھول کی مانند ہو، جو ہر کسی کی راہیں مہکاتا رہے اور خود دھوپ برداشت کرے، کیچڑ برداشت کرے، ہاں، یہ مٹی برداشت کرے، اور مٹی ڈالنے والوں، گند ڈالنے والوں اور سب کو وہ الٹا ان کی راہیں مہکا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر ان کے موافق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہو تو۔ مسائل والی تو نہیں تھی اتنی تھی سے، یہ پہلی ویسے تھی، باقی کہہ لیں کہ اخلاقی تربیت کے حوالے سے تھی۔ ٹھیک ہے شاید، جزاک اللہ. I think that's enough.